Friends, good evening. Once more, welcome to Mission Physics. Now, during the last three chapters and almost all the chapters, the last classes were for dimension at its uses. Against that, I had covered a lot of quantities, lot of explanations. Now, out of that, homogeneity was already over, conversion of units already over. Now, third one is left over, that is deducing relations among the physical quantities. Physical quantities, I mean length, time, second, candela, electric current, that is ampere. So these sort of things are physical quantities. Now, out of that, I want to show that deducing relations left hand side and right hand side. There are two parts. What is the relation between left hand side and right hand side? Today I'll explain stepwise what exactly happens in the relation among the quantities. Now it has got a few restrictions. इनके कुछ शर्त होते हैं. अगर किसी लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये देखिए t is equal to k l to the power a m to the power b and g to the power c, just for example, इनमें लेफ्ट हैंड साइड में t है, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 terms are there. So there is some relation between the time period t, constant k, length, mass and acceleration due to gravity. G is acceleration due to gravity. This is one of the new terms you have heard today. So today I will explain how this time period t is related to length, mass and gravity. For that there are two demands. इनके बीच में दो डिमांड है. पहला क्या है? Quantities on which physical quantity depends. Suppose इसका मतलब है वैसे quantities जिनके ऊपर राइट हैंड साइड वाले क्वांटिटी डिपेंड करते हो. अगर मैं टाइम पीरियड टी लूं तो इनके ये टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर, मास के ऊपर एंड ग्रेविटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर. तो ये मास के इनमें कौन कौन सा रेलिवेंस है, रेलिवेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, वो मैं वन बाय वन दिखाऊंगा. सेकंड, डिपेंडेंस टू बी ऑफ द प्रोडक्ट टाइप ओनली. अगर इनमें कोई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ जाए दैट विल बिकम इनवैलिड. ये जैसे राइट हैंड साइड में आपने देखा होगा L इंटू एम इंटू जी, दिस इज अ प्रोडक्ट टाइप. अगर इसके साथ में कुछ ऐड कर दूं, सपोज इफ यू राइट सम एडिशंस, इफ यू राइट समथिंग प्लस, दिस विल बिकम इनवैलिड. सो देयर आर two conditions. First is quantity on which physical quantity depends. Second condition is dependence to be of the product type only. Now I will come. Let us take this example on the top. In these equations, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. जैसे एक दिन मैंने आपको पिछले लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ाया था पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, first we write t equals k l to the power a m to the power b and g to the power c. ये किसके एग्जाम्पल हैं? एक स्ट्रिंग ले लीजिए, इसमें एक पेंडुलम है, ऊपर आपके घड़ी लगे हुए हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये घड़ी है. दिस इज कॉल्ड पेंडुलम. मास, ये एक मास है जो कि घूमता रहता है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग. सो और ये नीचे की तरफ अगर कुछ इसके वेट आ रहे हैं, दिस इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब धरती का एक प्रेशर है वो इनको नीचे खींच रहा है. तो this is depending upon L, this is L, length of the string, mass, this is mass, and G is the force drawing downward, that is acceleration due to gravity. Now first मैंने जो आपको पहला definition दिया था कि this should be dependence, वो मैंने दिखा दिया. Second is this should be a product type, so this is also product type is shown. नाउ लेट अस सी द डिपेंडेंट. ये दोनों कैसे कैसे डिपेंडेंट, किसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, लेट अस सी.
k is the constant, k is dimensionless, this is magnitude. Now next is t. Let us take in bracket. Bracket means we are going to take the dimensional formula, dimensional check whether this is dimensionally correct or not. If it is dimensionally correct, we will take. इसका dimension क्या होगा? t. That means for left hand side we have got t. Now let us come to the right hand side, RHS. So for L, this will be L capital to the power A as it is. M is MB. G is as it is LM, and G is acceleration due to gravity. You might have remembered acceleration due to gravity. I had told acceleration equal to L t to the power minus 2. I had already deduced in the previous classes, L t to the power minus 2. So for this G, I will write L t to the power minus 2, and that is C. Now first term, second term and third term, and this is T equals. So this is left hand side, this is right hand side. Now RHS not required. This I have taken the full definition. Now one by one we will equate. इसके साथ हम equate करेंगे. इसको एक बार और लिख लें, L to the power A, M to the power B and L to the power C. इसको अगर हम तोड़ दें तो L to the power C and T to the power minus 2C. चार टर्म हो गए, 1 2 3 4. L to the power A, M to the power B, L to the power C and T to the power minus 2C. तो L वाले दो टर्म हैं इसमें, देखो L to the power A, L to the power C. यहाँ एक स्मॉल एल्जेब्रा इक्वेशन आएगा, दैट इज आपने मेथड ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इंडिसेस इन योर क्लास 10 you might have read, that is a to the power m into the a to the power n equals to a to the power m plus n. Now this formula we will use here, that will become L to the power a plus c, both base are same, so their power will be added, m to the power b and t to the power minus 2c. Again we have got three terms. Now we will go on equating. हम इसको equate करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बनाएंगे. तो इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, सिर्फ t, और राइट हैंड साइड में l. तो इसको अगर हम किसी तरीके से 1 कर दें, इसको 1 कर दें, तो t और t दोनों साइड t हम छोड़ देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में l नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में m नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली t है. तो राइट साइड में हम ओनली t को इक्वेट करेंगे. तो इसको 1 करने के लिए a प्लस c को अगर हम 0 कर दें, बिकॉज यू नो a to the power 0 is equal to 1, that means anything to the power 0 is 1. ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, you might have read. अगर a प्लस c को हम 0 करें तो ये हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगा 1. उसी तरीके से m के पावर को b टू द पावर 0 करें तो ये हो जाएगा 1, b टू द पावर 0 विथ अकॉर्डिंग टू सेम फार्मूला, एनीथिंग टू द पावर 0. नाउ एंड t इज इक्वल टू माइनस 2c. तो इन दोनों को अगर जस्ट इसको एग्जांपल इक्वेशन 1 2 एंड 3. नाउ फ्रॉम हियर यू सी b इज 0, इनको आप कट कर दीजिए, छोड़ दीजिए. a प्लस सी, दैट मीन्स a इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है, और t इज इक्वल टू माइनस 2c. तो c इज इक्वल टू, वी कैन से इट इज हाफ, दैट इज माइनस 2c इज इक्वल टू 1. माइनस 2c अगर 1 करें, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, यहाँ t का पावर 1 है, यहाँ t का पावर माइनस 2c है. तो अगर हम t टू द पावर माइनस 2c एंड इक्वल टू t टू द पावर 1, तो हम लिख सकते हैं माइनस 2c इज इक्वल टू 1. दोनों के पावर को हमने बराबर किया, 2c 2c, t t.
सो -2c इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल टू -1/2. I think you are agreed with 1. c is equal to -2 exactly in the same way, and b is equal to 0. I have already shown here. b is 0 मैंने कहा था 1 करने के लिए, और l is equal to a plus c is equal to 1. Since a plus c equals to 1, c कितना हमारा आया था, c is -half, so a plus -half equals to 1 और a is equal to half. a plus, that is c is -half, c is -half, b is 0, c is equal to -half. So putting in the equation, a plus c is equal to 1. a plus c is equal to 0 I had put. So a plus c का वैल्यू है -half, मैंने जस्ट वैल्यू पुट किया, और दिस इक्वल्स 0. a plus c was 0. नाउ कम a is equal to -half, अगर उधर जाएगा तो +half हो जाएगा. सो a की वैल्यू हो गई हाफ, c की वैल्यू हो गई -half, b की वैल्यू हो गई 0. अब a b c तीनों का वैल्यू हमें मिल गया, हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे. नाउ a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -half. हमारा फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू k l टू द पावर a m to the power b and g to the power d to the power c. अब k ले लो, l 1/2, m to the power 0, g to the power -half. t का इस तरह डिपेंडेंस है, तो इसमें m to the power 0, दैट मीन्स m का रोल 0 हो गया. m का कोई वैल्यू नहीं है, m का अभी दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक तो k, एक l टू द पावर हाफ और t टू द पावर हाफ. इसको अगर हम डिड्यूस करें तो k हाफ मतलब स्क्वायर रूट l g. अब आप देखिए, यू जस्ट सी योर पेंडुलम इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. इट इज गोइंग दिस साइड, इट इज गोइंग दैट साइड. दो चीजों पर सिर्फ डिपेंड करता है. टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द कांस्टेंट, दैट इज मैग्नीट्यूड, डायमेंशनलेस. स्क्वायर रूट एल एंड जी, देयर इज नो मास. मास है नहीं इसके अंदर. इसका मतलब है कि चाहे छोटा मास लगाइए या बड़ा, इतना बड़ा बॉल लगा दीजिए, वो भी इसी पीरियड के हिसाब से घूमेगा. दैट मीन्स वी हैव डिड्यूस्ड वन इक्वेशन दैट योर टाइम पीरियड t डिपेंड्स अपॉन ओनली कांस्टेंट, इट्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग छोटा करोगे तो टाइम पीरियड में चेंज आ जाएगा, छोटा या बड़ा, इसको अगर हम वेरी करें, क्योंकि दिस इज डिपेंडिंग अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल, लेंथ. दूसरा, मास इसमें कोई डिपेंड नहीं करता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी इसको ज़्यादा जोर से खींचेगी तो इसका घूमना कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो यही दो चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करता है. मास का इतना कोई वैल्यू नहीं है, आप छोटा लगाइए, बड़ा लगाइए, कितना बड़ा भी लगाइए, सो ऑल द सेम. तो जब भी घड़ी का पेंडुलम का कंस्ट्रक्शन होगा, मास के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, स्ट्रिंग आपका कितना बड़ा होगा, और जी वहाँ जिस जगह पे आप लगाएंगे, पहाड़ के ऊपर लगाएंगे तो अलग होगा, नीचे ज़मीन पे लगाएंगे तो ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा होगा, कम होगा, दैट विल बी वेरिएबल. सो दिस इज़ वेरिएबल, दिस इज़ वेरिएबल. तो इस तरीके से हम सारे चीज़ों में, जितनी भी डायनामिक चीज़ें हैं उसमें हम ढूंढ सकते हैं कि एक लेफ्ट हैंड साइड, एक फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम पीरियड है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. इस तरीके से हम फिजिक्स इसको डिड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज द डिडक्शन ऑफ दिस डिड्यूसिंग रिलेशंस अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज. दिस 4 क्वांटिटीज वी हैव डिड्यूस्ड वन रिलेशन, and this is the relation. This is the equation for finding the pendulum equation. So this says this is directly proportional. ऊपर जो है वो directly proportional. So T will be directly proportional to L. L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, L घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा. T दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू G. अगर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, यहाँ उल्टा है क्योंकि 1 by इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दिस इक्वेशन इज सेइंग दैट योर टाइम पीरियड विल बी increased if your length of the string increase. Directly it is proportional as per this. Secondly, t will be decreased if your acceleration due to gravity increased. This will increase if this decrease. So this is called inversely proportional, this is called directly proportional. So this way we can deduce, एक आइडिया निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और किस रूल के हिसाब से ये एक्ट करेगा. So that is all for the deducing relation. I think you might have understood. I have told very clearly each and every term I have explained. Now in my next class I will be, the last part of the introduction of physics is the limitations. So that I will be covering later on. I think this much is sufficient for deducing the relations. Thank you.